Hello everyone. Today we are going to go through the explanation portion, the remaining explanation portion of our chapter Evans Tries an O Level, the seventh chapter of your book Vistas, class 12th English, and I am going to explain the chapter to you. अभी तक जो हम चैप्टर को पढ़ रहे थे उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट इज अ लॉन्ग चैप्टर बट एन इम्पॉर्टेंट वन. सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर Evans Tries an O Level by Colin Dexter. Okay, now till now we have seen Evan was giving the paper. I won't go that far. Evan was giving the paper, McClary was taking the paper, and McClary was the invigilator who had came from the, he's a clergy, he came from the examination board because the secretary and governor had arranged both the, everything related with the German language O level exam of Evans. Then what happens? Ivan was a kleptomaniac. He was known as Ivan the Break because he broke the jail a few times, more than three times actually. But after that, this time the security arrangements were perfect. Everything was going good. He was giving the paper. Stephen was outside the prison. He was continuously watching what's going to happen inside the prison, and Jackson was the main officer of the D-wing. Governor was listening everything on the microphone. Every sound of that prison is being heard by the governor in his cabin. Everything was going good. So it was the last time, I need to say, at last the Evans asked for a blanket because he is feeling a bit cold. He is feeling cold inside, so he asked for a blanket. And he got that. उसको वो blanket मिला भी सही. So all these things happen near 11 o'clock. Now it's about 11:20. What happened when the exam was there to finish? Because it is an exam of 2 hours, it got a bit late, but now it's there to finish. So now let's see what happens. So at 11:20, the receiver once more crackled across the silence of the governor's office, and McClary informed Evans that only 5 minutes remained. तो लगभग 11:20 पर एक बार फिर से जो है गवर्नर के ऑफिस का जो फोन है वो बजता है. उसमें एक आवाज़, मतलब वो उस पर किसी का कॉल आता है और साइलेंस, पूरा ऑफिस में साइलेंस था. वो साइलेंस ब्रेक होता है उस चीज़ से, बस उसी को वर्ड्स में बताया गया है. और तब मतलब उसी टाइम पे मैक्लेरी जो है इवांस को ये बता रहा है, ये सब हो रहा है इधर, और यहाँ पर जो प्रिजन के अंदर जो एग्जाम चल रहा है वहाँ पर मैक्लेरी इवांस को बता रहे हैं कि only 5 minutes are remaining in the exam. So your exam is there to be completed. So you just have 5 minutes. Just be prepared to finish it up, wind it up. That's what McClary is telling to Evans. The examination was almost over now, but something still groaned away quietly in the governor's mind. He reached for the phone once more. तो एग्जाम लगभग कंप्लीट होने वाला है. द एग्जाम वॉज ऑलमोस्ट देयर टू बी ओवर, बट अभी भी जो गवर्नर हैं उनके दिमाग में कुछ चीज़ें जो है ऐसी चल रही है. इज बिट सस्पिशियस इवन टुडे. उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ रॉन्ग हो सकता है. वो अभी भी जो है इवांस के सेल में बात सुनना चाहते हैं. अभी तक सब सही रहा. पिछले 2 घंटे में इवान ने कोई ऐसा कुछ नहीं किया उनकी नज़रों में. व्हेन अकॉर्डिंग टू देम इवान ने पूरे 2 घंटे का पेपर बहुत अच्छे से दिया. वहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर है स्टीफन, जो कि एक हेवीली बिल्ड ऑफिसर है. उससे इवान लड़के नहीं भाग सकता. सिर्फ एक आदमी है जिसको वो हर्ट करके निकल सकता है, दैट इज द इन्विजिलेटर मैक्लेरी. ओके, तो अभी फोन पर वो इधर बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक सस्पिशन चल रहा है. सस्पिशन मतलब एक डाउट चल रहा है कि इट कैन लास्ट मोमेंट में भी इवांस कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका नाम है इवान द ब्रेक. सो वंस मोर एट 11:22 AM, Jackson shouted along the corridor to Stephens. The governor wanted to speak with him. Hurry man. तो लगभग 11:22 पे एक बार जैक्सन जो है शाउट करता है स्टीफन से और बोलता है कि गवर्नर बात करना चाहता है, गवर्नर बात करना चाहते हैं. इस तरीके से जो है वो शाउट करता है. कॉरिडोर है, एक लंबा सा कॉरिडोर है, एक साइड पर
इवेंस का जहां प्रिजन है वहां स्टीफन खड़ा है, दूसरी साइड पर डी-विंग के दूसरी साइड पर जैक्सन है। ऐसे वो बोलता है हरी कम ऑन, जल्दी से तुम आओ। तो स्टीफन पिक द फोन, मतलब वो बोल रहे हैं किससे, जैक्सन ने बोला स्टीफन से कि गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं। स्टीफन की ड्यूटी बाहर है, फोन आया तो गवर्नर ने कहा मुझे स्टीफन से बात करनी है ना, जैक्सन को बोला, क्योंकि जैक्सन हेड ऑफिसर है तो जैक्सन वहां फोन के पास बैठा है। तो जैक्सन को बोला कि आप स्टीफन से मेरी बात कराओ, बिकॉज ही वॉज इन चार्ज, वो वहां पर जो है मेन लीड में वो काम कर रहा है। हाउ टू डील द कंडीशन, व्हाट टू डू, हाउ टू मैनेज, हाउ टू टेक मैक्लेरी आउट, व्हाटएवर इज देयर, कैसे अब एंड अप करना है चीजों को, ये कौन करेगा, स्टीफन करेगा, बिकॉज जैक्सन डी-विंग का ऑफिसर तो है, हेड ऑफिसर है, बट वहां पर चार्ज में कौन है, अभी कौन काम कर रहा है, दैट इज स्टीफन। तो जैक्सन के पास फोन आता है कि स्टीफन तुमसे गवर्नर बात करना चाहते हैं। नाउ स्टीफन पिक द फोन एप्रीहेंसिवली एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स। स्टीफन एकदम से फोन उठाता है और गवर्नर के जो रैपिडली स्पीकन ऑफ ऑर्डर्स हैं, मतलब एकदम से जो वो झट 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 जल्दी जल्दी उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, उनको वो सुनता है। अब ऐसे में कोई भी ये चीज़ नहीं डायग्नोस कर सकता कि वो फ़ोन सही है गलत है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अगर आपको कोई बोला जा रहा है कि आपको अपनी किसी अथॉरिटी से फ़ोन आने वाला है और आप फ़ोन पे, आपको किसी ने कहा है, आपके किसी एक्वेंटेंस ने या किसी फैमिली मेम्बर ने कहा आपकी अथॉरिटी का फ़ोन है, यू जस्ट हैव टू आंसर हिम, तो आप जल्दी से सुनोगे और जो भी वो बोलना चाह रहे हैं उनकी बात को आंसर कर दोगे। एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना। तो सेम इज द केस हियर, यहाँ पर भी वही होता है, जल्दी से स्टीफन जो है जो भी ऑर्डर्स उसको दिए जाते हैं ऑन फोन, उनको वो सुन लेता है और उनके ऊपर रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। Listen to the rapidly spoken orders. Stephen himself was to accompany McClary to the main prison gates. Understood? तो जो गवर्नर है वो स्टीफन को क्या बोलता है फोन पर, स्टीफन को बोलता है स्टीफन तुम्हें मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ के आना है। क्या बोला गवर्नर ने कि मैक्लेरी को, क्योंकि तुम हेवीली बिल्ड हो, लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, मैक्लेरी की सेफ्टी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वो आउटसाइडर है, इन्विजिलेट करने आए हैं बस। सो तुम्हारा काम है कि सेफली उन्हें प्रिजन के मेन गेट से बाहर तक छोड़ने जाओ। तो ठीक है, गवर्नर ने कहा है उसको बेचारे को, ही इज जस्ट वर्कर, वहाँ पर वो एक सिर्फ प्रिजन ऑफिसर है, काम करता है, गवर्नर की बात उसे माननी पड़ेगी। तो ठीक है, वो बहुत खुश है कि अच्छा ठीक है, गवर्नर ने मुझे बोला, जैक्सन को नहीं बोला, ये बात भी उसके दिमाग में है। तो जैसे ही उसको ये काम मिला, ही फील्ड ओवरवेल्म्ड। Stephen personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McClary had left the cell. Understood? तो वो एक और उसको ऑर्डर क्या मिला कि स्टीफन तुम्हें पर्सनली चेक करना है कि जैसे ही मैक्लेरी वहां से बाहर आ जाते हैं, सेल से बाहर आ जाते हैं, तो गेट अच्छे से पूरा लॉक हो। अंडरस्टूड? ऐसे करके उसको ऑर्डर दिया जाता है। गवर्नर ऑर्डर दे रहा है, पहला ऑर्डर दिया मैक्लेरी को गेट तक छोड़ के तुम आओगे। सेकेंड ऑर्डर दिया कि गेट तक जब वो पहुंचता है उससे पहले जब मैक्लेरी को आप सेल से बाहर निकालेंगे, सो एट दैट टाइम मतलब इवेंस का जो प्रिजन है वो अच्छे से लॉक हो, क्योंकि वो भाग सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो वहां पर भी उनको एक कंसर्न शो हो रहा है कि तब तो बार बार बोलता है अंडरस्टूड, समझ में आया, समझ में आया। तो स्टीफन बेचारा एक ऑफिसर है, उसको बात सुननी है, उसने बात सुन ली। एट 11:25 AM द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। मैक्लेरी स्टॉप राइटिंग प्लीज। और लगभग 11:25 पे जो हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने एक आखिरी बातें सुनी, किसके बीच में, मैक्लेरी और इवेंस के बीच में। पेपर खत्म होने वाला है, एवरीथिंग वाज ऑन द वर्ज ऑफ लाइक वाइंडिंग अप, हर चीज जो है खत्म होने की कगार पे है, 2 घंटे होने वाले हैं। तो वहां पर उन्होंने जो है आखिरी बात सुन रहे हैं इवेंस की और जैक्सन की कि क्या होने वाला है। स्टॉप राइटिंग प्लीज, मैक्लेरी बोलता है इवेंस से, स्टॉप राइटिंग, खत्म हो गया। मैक्लेरी पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड और नॉट। तो कहता है कि तुम्हारी शीट्स को देखो, तुमने सारी चीज़ें, शीट्स जितनी भी तुमने भरी है सब करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं है। 1 2 3 4 ऐसे लगाया है, पेजेस को नहीं लगाया है। लास्ट टाइम है, 5 मिनट है, खत्म करो, लिखना बंद करो। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, तो ऐसे चेयर्स की खिसकने की आवाज़ आती है। ये सारी आवाज़ें कौन सुन रहा है? गवर्नर सुन रहा है अपने केबिन के अंदर बैठे हुए। गवर्नर अपनी जगह पर बैठ के सुन रहे हैं कि लास्ट में आवाज़ें आ रही है, मैक्लेरी बोल रहा है इवेंस से स्टॉप राइटिंग एंड पुट योर शीट्स इन नंबर, अपनी शीट्स को ठीक से लगा लो। ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस एग्जाम के लास्ट में होते हैं
कि जल्दी से अपने एग्जाम पेपर को बांध लो या व्हाटएवर योर शीट्स हैव टू बी करेक्ट ऑर्डर, डू इट फास्ट, लीव द पेन, स्टॉप राइटिंग, चेक योर पेपर, यही सब होता है ना। तो यही सारी चीज़ें वो सुन रहा है। चेयर के खिसकने की, टेबल के खिसकने की आवाज़ आती है। इवेंट्स का लास्ट डायलॉग क्या है? थैंक यू वेरी मच सर। तो मैक्लेरी बोलता है हाँ राइट, वॉज इट? इवेंट्स बोलता है नो, नॉट गुड, नॉट टू बैड। अब इसका मतलब क्या है और इसके आगे हम क्या देखेंगे? मतलब उसने क्या बोला है, पेपर ले लिया, तो उसने उससे पूछा पेपर कैसा था, अच्छा था या नहीं था, वॉज इट? तो वो बोलता है नॉट टू बैड, बहुत बुरा नहीं था, अच्छा था, इट वॉज गुड। ओके, सो आफ्टर दिस पॉइंट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. What you have to do is very simple. Read the chapter up to this point and then watch the video. You will be able to understand it very clearly. We are on the verge. Somewhere in the coming few days, in the coming few, I mean to say videos, we are going to complete this chapter. It is an important one. So just go through it. I hope आपको समझ में आया होगा. Thank you.